اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہے ہمارے زبان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا ہمارے چینل فرسٹ لرننگ پر خیر مقدم استقبال ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے چیپٹر 6 اور چیپٹر کا نام ہے بی اماں۔ آپ کے سبق کا نام ہے بی اماں اور آپ کا یہ سبق 6 ہے، چھٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا مرکزی خیال پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ بی اماں میں کیا ہے، ان کے 2 بیٹے ہیں، محمد جوہر علی اور مولانا شوکت علی۔ ان دونوں نے آزادی کے جد و جہد میں حصہ لیا اور آزادی کے لیے دونوں نے لڑائی لڑی، اور بی اماں نے دونوں بیٹے کو اس طرح تیار کیا کہ وہ دونوں بہت ہی ہمت والے اور ملک کے لیے کام کرنے والے نکلے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا مرکزی خیال پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے، پھر سوال جواب پڑھیں گے۔ اور اس میں جو بھی کام ہے، جملے بنانا، خالی جگہ کو بھریے اور متضاد الفاظ، سب کچھ میں نے اس میں پڑھایا ہے۔ تو آپ میری ویڈیو بنے رہیں، پوری ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں۔ اگر آپ ایک بار ویڈیو کو اچھے سے دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا مرکزی خیال پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سبق بی اماں اور ان کے 2 بیٹوں مولانا محمد جوہر علی اور مولانا شوکت علی، ان کے 2 بیٹے ہیں۔ دونوں بیٹے کا نام کیا ہے؟ مولانا محمد جوہر علی اور مولانا شوکت علی، ان کے 2 بیٹے ہیں، کہ ایثار، محبت اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ اس سبق میں کیا ہے، بی اماں کے 2 بیٹے ہیں اور جن کا نام ہے مولانا محمد جوہر علی، مولانا شوکت علی، تو ان کے ایثار اور محبت اور قربانی کا درس دیتا ہے، یعنی ہمیں سبق دیتا ہے۔ اس سبق کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ بی اماں اپنے ملک کی آزادی کے لیے کتنی فکر مند تھیں، اور ہم اس سبق کو پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ بی اماں اپنے ملک کی آزادی کے لیے، کیونکہ جب ہمارا ملک غلام تھا اور انگریز یہاں حکومت کرتی تھی تو ہمارے ملک کے سارے لوگوں نے مل کر لڑائی لڑی ہے۔ ایک گھر کی عورت بھی کیا ہے اس میں شامل تھی۔ بی اماں ایک بوڑھی عورت تھی، ان کے 2 بیٹے تھے، لیکن وہ بھی بہت فکر مند تھیں کہ ہمارے ملک کو آزادی کیسے ملے گی۔ اپنے ملک کی آزادی کے لیے وہ بہت فکر مند تھی اور بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار تھیں، اور وہ کیا ہے، بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار تھیں۔ بی اماں کا بیماری کی حالت میں اپنے بیٹوں سے ملنے خود اسٹیشن پہنچ جانا ان کی جرات مندی کا پتہ دیتا ہے۔ ان کی جرات مندی، ان کو اتنی ہمت تھی، ان کے اندر اتنی قوت تھی کہ بڑھاپے میں بھی وہ کیا ہے، بیماری کی حالت میں ایک دم بیمار تھیں اور اپنے بیٹے کو کیا ہے اسٹیشن ملنے چلی جاتی ہیں، کیونکہ ان کے بیٹے جب ان سے ملنے آ رہے تھے تو انگریز نے انہیں روک دیا اور جانے نہیں دیا، تو وہ کیا ہے بیماری کے حالت میں اسٹیشن چلی گئیں اپنے بیٹوں سے ملنے کے لیے۔ اور بی اماں کہتی تھیں کہ ہمارے 2 بیٹے ہیں، اگر اور بھی بیٹے ہوتے تو میں ملک کے ہندوستان کی آزادی کے لیے اسے قربان کر دیتی۔ تو وہ کیا ہے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار تھیں۔ مسلمانوں کی تاریخ میں خلافت کا مطلب یہ ہے، اب خلافت کسے کہتے ہیں، خلافت کیا ہے؟ تو مسلمان کی تاریخ میں خلافت کا مطلب یہ ہے کہ سیاست میں بادشاہ نہیں ہوتا، بادشاہت نہیں ہوتی۔ مسلمان کی جو تاریخ ہے اس میں جو خلافت ہوتی ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، اس میں کیا ہے، سیاست میں بادشاہت نہیں ہوتی، وہ بادشاہ نہیں ہوتا، وہ حکومت نہیں کرتا، بلکہ کیا ہے، حکمراں کو کیا ہے، خلیفہ کہا جاتا ہے۔ یہاں کیا ہے، حکمراں کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ خلیفہ کے معنی جانشی یا نائب کے ہیں۔ خلیفہ کے معنی کیا ہوتا ہے، جانشی یا نائب کے ہیں۔ خلیفہ اپنا حکم نہیں چلاتا۔ مسلمان کی جو سیاست میں کیا بادشاہت نہیں ہوتی ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے صرف جانشی یا نائب ہوتا ہے، یعنی ایک صدر بن کر رہتا ہے، وہ اپنا حکومت نہیں چلاتا ہے، وہ زمین پر خدا کا نائب ہوتا ہے، اس لیے خدا کا ہی حکم چلاتا ہے۔ وہ زمین پر کیا خدا کا نائب ہوتا ہے اور اس لیے خدا کا ہی حکم چلاتا ہے، اسی کو خلافت کہتے ہیں، اسی کو کیا ہے، خلافت کہتے ہیں۔ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں کہ خلافت کسے کہا جاتا ہے۔ مسلمان کی تاریخ میں کیا ہے، بادشاہت نہیں ہوتی ہے، بادشاہ نہیں ہوتا، بلکہ یہاں حکمرانوں کو خلیفہ کہا جاتا ہے، اور خلیفہ کے معنی ہوتا ہے جانشی یا نائب۔ جانشی یعنی کوئی بڑا آدمی مر گیا تو اس کا بیٹا اس کا جانشی ہوتا ہے، تو وہی کیا ہے، خلیفہ بن جاتا ہے۔ تو جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اپنا حکم نہیں چلاتا، بلکہ زمین پر خدا کا نائب ہوتا ہے، یعنی خدا کا بھیجا ہوا نائب ہوتا ہے، اور اس لیے وہ خدا کا ہی حکم چلاتا ہے، اسی کو کیا خلافت کہتے ہیں۔ اب آئیے سوال جواب دیکھ لیتے ہیں۔ سوال آپ کا پہلا ہے، بی اماں کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ بی اماں کس خاندان سے تھی؟ تو جواب لکھیں گے، بی اماں کا تعلق
रईस और मनसबदारों के ख़ानदान से था। बी अम्मा क्या बड़े ख़ानदान की थी, रईसों और मनसबदारों यानी बड़े बड़े जो मनसब पर फायज होते हैं लोग, कोई अच्छे, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो मनसबदारों यानी उनके ख़ानदान में बड़े बड़े ओहदे पर लोग थे। तो बी अम्मा का ताल्लुक़ रईसों और मनसबदारों के ख़ानदान से था। सवाल 2 है, बी अम्मा के ख़ानदान वतन से मोहब्बत किस बात से ज़ाहिर होती है। बी अम्मा का जो ख़ानदान था तो उनका पूरा ख़ानदान क्या वतन से मोहब्बत करता था, तो ये किस बात से ज़ाहिर होती है। 1857 में इस ख़ानदान ने तय किया, जवाब में लिखेंगे कि 1857 में इस ख़ानदान ने तय किया, किस ख़ानदान ने, बी अम्मा के ख़ानदान ने तय किया कि अगर दिल्ली और मेरठ की तरह अमरोहा में भी आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हुई तो हम अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि 1857 की गदर में क्या है, दिल्ली में बहुत बुरी तरह से गदर हुआ था और अंग्रेज़ों ने बहुत लूट मार मचाई थी, हर मुसलमान को उसने काट डाला था, सबका घर जला दिया था और बहुत बर्बादी हुई थी। तो बी अम्मा के ख़ानदान ने तय कर लिया था कि अगर मेरठ दिल्ली के तरह क्या है अमरोहा में भी, वो लोग क्या अमरोहा के रहने वाले थे, अमरोहा में भी जद्दोजहद शुरू हुई तो हम क्या है अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे और अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे। इस बात से मालूम होता है कि बी अम्मा के ख़ानदान में हमेशा से अपने वतन के लिए मोहब्बत पाई जाती है। और इस बात से क्या है पता चलता है कि बी अम्मा के ख़ानदान में हमेशा से अपने वतन के लिए मोहब्बत पाई जाती है, क्योंकि उनके ख़ानदान ने तय कर लिया था कि दिल्ली के गदर की तरह अगर अमरोहा में भी आज़ादी की जद्दोजहद शुरू होगी तो हम क्या है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो जाएंगे, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे और अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे, यानी अपनी हुकूमत बना लेंगे। तो इस बात से मालूम होता है कि बी अम्मा के ख़ानदान में हमेशा से वतन के लिए क्या मोहब्बत पाई जाती है। अंग्रेज़ों के समझौते की बात पर बी अम्मा ने क्या कहा था। जब अंग्रेज़ों से समझौते की बात हुई तो बी अम्मा ने क्या कहा था, आइए जवाब देखते हैं। अंग्रेज़ों से समझौते की बात हुई तो बी अम्मा ने कहा, गवर्नमेंट ये जान ले कि अगर अली बिरादरान किसी ऐसी बात का इकरार कर लेंगे जो इनके मजहबी अहकाम या मुल्की फ़ायदों के ज़रा भी ख़िलाफ़ हो तो मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक मेरे क़ल्ब को इतनी मजबूती और इन सूखे हाथों में इतनी ताकत देगा कि मैं इसी वक्त इन दोनों का गला घोंट दूंगी। अली बिरादरान किसको कहा गया, दोनों भाई को, मोहम्मद अली जौहर को और मोहम्मद शौकत अली को। मोहम्मद जौहर अली और मोहम्मद शौकत अली ये दोनों भाई थे, तो इन दोनों को क्या अली बिरादरान कहा जाता था, ठीक है। तो उनकी अम्मा कह रही हैं, बी अम्मा ने कहा कि अगर अली बिरादरान किसी ऐसी बात का इकरार कर लेंगे जो इनके मजहबी अहकाम या मुल्की फ़ायदों यानी उनके मजहबी हुक्म के ख़िलाफ़ होगा या मुल्क के फ़ायदों के ख़िलाफ़ होगा तो मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक मेरे क़ल्ब को इतनी मजबूती और इन सूखे हाथों में इतनी ताकत देगा कि मैं इसी वक्त इन दोनों का गला घोंट दूंगी। बी अम्मा कितनी बहादुर थीं। पहले की जो औरतें थीं वो भी क्या है, उन्होंने भी आज़ादी में साथ साथ हिस्सा लिया, जितने मर्द ने काम किया है उतने औरतों ने भी काम किया है। तो बी अम्मा एक बूढ़ी औरत थी और वो कह रही हैं कि अल्लाह मेरे क़ल्ब को, मेरे जिगर को, मेरे कलेजे को इतनी ताकत दे और मेरे सूखे हाथ में इतनी ताकत दे कि मैं दोनों का क्या गला घोंट दूंगी अगर इन लोग मुल्क के फ़ायदे के ज़रा भी पीछे हटें या अपने मजहबी अहकाम से ज़रा भी पीछे हटेंगे। मजहबी अहकाम क्या, हुक्म की जमा, ठीक है। इससे ज़रा भी पीछे हटेंगे तो मैं अपने दोनों हाथों से, सूखे हाथों से क्या है, दोनों का गला घोंट दूंगी। बी अम्मा इतनी मजबूत औरत थी, आप सोच सकते हैं कि कितनी मजबूत औरत थी वो। सवाल है, शौहर के इंतकाल के बाद बी अम्मा ने बच्चों की परवरिश किस तरह की, ठीक है। उनके शौहर का इंतकाल हो गया तो इंतकाल के बाद बी अम्मा ने बच्चों की परवरिश किस तरह की है। तो आइए जवाब लिखते हैं। बी अम्मा ने बच्चों की परवरिश इस ढंग से की कि आगे चलकर मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेज़ हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। ये दोनों भाई इतने मजबूत, इतने जाबाज, इतने बहादुर थे और इनकी माँ ने इनकी इस तरह से परवरिश की थी कि जब बड़े हुए और आज़ादी में लड़े, जद्दोजहद की, तो अंग्रेज़ हुकूमत को क्या है, इन दोनों ने हिला कर रख दिया था। ये दोनों इतने जाबाज और मजबूत थे दोनों भाई। सवाल है, अली बिरादरान बी अम्मा से मिलने रामपुर गए तो अंग्रेज़ों ने इनके साथ क्या सलूक किया। अली बिरादरान क्या है, बी अम्मा से मिलने के लिए रामपुर गए
तो उनकी अम्मा का क्या तबीयत ख़राब था, तो वो क्या रामपुर उनसे मिलने के लिए गए थे। तो जब वो मिलने गए तो अंग्रेज़ ने क्या है उनको रेलवे स्टेशन पर रोक दिया और उनको उनकी अम्मा से मिलने नहीं दिया। लेकिन जब बी अम्मा को पता चला कि दोनों भाई स्टेशन पर आए हुए हैं तो बीमारी की हालत में क्या स्टेशन चली गई। तो मैं आपको इसलिए बार बार समझा रही हूँ कि क्योंकि आप अपने अंदाज में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए जवाब देखते हैं। बी अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई तो अली बिरादरान यानी दोनों भाई मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई अपनी माँ से मिलने के लिए रामपुर आए, ठीक है। उनकी माँ कहाँ रहती थी? रामपुर में रहती थी। लेकिन उन्हें अंग्रेज़ हुकूमत ने रेलवे स्टेशन पर रोक दिया। लेकिन दोनों भाइयों को क्या है अंग्रेज़ हुकूमत ने रेलवे स्टेशन पर रोक दिया। जब इसकी खबर बी अम्मा को मिली तो वो खुद बीमारी की हालत में स्टेशन आ गई। और जब इसकी खबर बी अम्मा को मिली कि मेरे दोनों बेटे आए हुए हैं और स्टेशन पर अंग्रेज़ों ने रोक लिया है, तो वो बीमारी की हालत में क्या है स्टेशन चली गई, बीमारी की हालत में स्टेशन आ गई। बी अम्मा क्योंकि बहुत हिम्मत वाली औरत थी तो वो रुकी नहीं, वो क्या स्टेशन चली गई अपने बेटों से मिलने के लिए। सवाल है बी अम्मा की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? बी अम्मा की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? बी अम्मा की आखिरी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को वो अपनी आँखों से देखें। बी अम्मा एक बूढ़ी औरत थी, एक लेडी थी, एक घरेलू औरत थी, लेकिन उनका हौसला कितना बुलंद था, उनकी सोच कितनी बुलंद थी। वो सोचती थी, उनकी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद यानी दोनों मिलजुल कर रहना, दोनों को मिलजुल कर रहना, उसको वो अपनी आँखों से देखना चाहती थी कि जब हिंदुस्तान की आज़ादी हो जाए और हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहें, उस बात को क्या वो अपनी आँखों से देखना चाहती थी। लेकिन इनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। बी अम्मा की आखिरी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को वो अपनी आँखों से देखें, ठीक है। ये इसका जवाब है। तो बच्चों इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपको बार बार कहूँगी कि वीडियो को पूरी देखिए, स्किप किए बगैर देखिए, ताकि मैं एक एक बात जो बताती हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और मैंने आपके लिए क्या पूरा कोर्स तैयार किया है क्लास 7 का। आप ये देख सकते हैं कि ये बी अम्मा है, उसके बाद क्लास 7 है, बाहर है आपका नज़म है, उसके बाद देखिए छिद्दू है आपका, ठीक है, चैप्टर 8 है। इसी तरह मैंने पूरी बुक का क्या है आंसर क्वेश्चन तैयार किया है। और बुक में आपको जो भी काम है, जुमले बनाना और ख़ाली जगह को भरना, मुतज़ाद अल्फाज है या और भी जो आपको ग्रामर के काम दिए जाते हैं, उर्दू कवायद का काम दिया जाता है, मैंने इसमें पूरा कंप्लीट करवाया है। तो अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो ओनली 150 रुपीज़ में आपको कोर्स मिलेगा। मैं आपको इसका नंबर दे दूँगी, आपको अगर चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारा कुछ मैंने इसमें तैयार किया है। क्लास 7 का ये पूरा कोर्स मेरे पास तैयार है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए, ठीक है। इसका क्या उल्टा लिखना है, मुतज़ाद यानी ज़िद, ठीक है। ज़िद माने क्या होता है? उल्टा। तो इस लफ्ज़ों का मुतज़ाद लिखना है। आज़ादी का क्या होगा? क़ैद होगा, ठीक है। नफ़रत का मोहब्बत होगा, इक़रार का इनकार होगा और रईस का रज़ील। रईस यानी बड़ा आदमी और रज़ील यानी जो बदमाश होता है, जो बदतमीज़ होता है, तो वो रज़ील है। या हम फ़कीर भी लिख सकते हैं। शुरू का उल्टा आखिर और मुबारक का उल्टा मलामत। मुबारक देना यानी अच्छी ख्वाहिश देना, अच्छी दुआ देना, और मलामत यानी बद्दुआ देना, ठीक है। अब नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। तो जो भी आपको लफ्ज़ दिया गया है उसका जुमला बनाना है। जैसे आपका पहला लफ्ज़ है बुज़ुर्ग। बी अम्मा के बुज़ुर्ग बहुत वतन परस्त थे। जो बी अम्मा के बुज़ुर्ग थे, जो उनके ख़ानदान के लोग थे, वो बहुत वतन परस्त थे। यानी वतन परस्त यानी वतन से मोहब्बत करते थे। इसरार माने होता ज़िद करना, किसी बात के लिए बार बार इसरार करना कि हमें करना है। बी अम्मा ने इसरार किया कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगी। बी अम्मा ने दिल्ली जाने के लिए इसरार किया कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगी। तरबियत। बी अम्मा ने अपने दोनों बेटों की तरबियत बहुत अच्छे से की थी। बी अम्मा ने दोनों बेटों की जो तरबियत की थी वो बहुत अच्छी तरह से की थी। रुखसत यानी रुखसत होना, जाना।
बी अम्मा 13 नवंबर 1924 को इस दुनिया से रुखसत हो गईं। देखिए जुमले में आपकी किताब से ही बनाती हूँ ताकि आपको क्या है याद हो जाए कि क्या क्या इसमें दिया गया है, आपकी किताब में इस चैप्टर में क्या क्या बातें बताई गई हैं। बी अम्मा 13 नवंबर 1924 ईस्वी को इस दुनिया से रुखसत हो गईं। हौसला बी अम्मा बहुत हौसले वाली औरत थी। हौसला यानी हिम्मत वाली औरत थी। बी अम्मा बहुत हौसले वाली औरत थी, बहुत इनके अंदर हिम्मत था। ख्वाहिश, बी अम्मा की ख्वाहिश थी कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को अपनी आँखों से देखूं, क्योंकि बी अम्मा बहुत बहादुर औरत थी, हौसले वाली औरत थी और इनकी ये ख्वाहिश थी कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद यानी हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहें, इसको अपनी आँखों से देखूं, इसको अपनी आँखों से देखना चाहती थी। एक तो हिंदुस्तान की आज़ादी को वो देखना चाहती थी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को वो अपनी आँखों से देखना चाहती थी। तो ये इनकी ख्वाहिश थी। ठीक है, आइए अब खाली जगह को लफ्ज़ से भरिए, सही लफ्ज़ से भरिए। जो सही लफ्ज़ है आप उसको भरिए। मौलाना मोहम्मद जौहर अली की वालदा बी अम्मा के तौर पर जानी जाती थी। जो मौलाना मोहम्मद जौहर अली हैं और शौकत अली, इनके 2 बेटे हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? अली बिरादरान कहा जाता है। ठीक है, तो मौलाना मोहम्मद जौहर अली की वालदा बी अम्मा के तौर पर जानी जाती थी। बी अम्मा का ताल्लुक़ रईसों और मुनसबदारों के ख़ानदान से था। रईस यानी अमीर लोग थे, मुनसबदार यानी बहुत अहदे वाले लोग थे। अंग्रेज़ के मुजालिम की दास्तानें भी बुज़ुर्गों से सुन रखी थी। बी अम्मा ने क्या है? अंग्रेज़ के मुजालिम यानी जुल्म की जमा, जो अंग्रेज़ों ने जुल्म किया था हिंदुस्तानी पर, उसकी दास्तानी कहानी भी अपने बुज़ुर्गों से सुन रखी थी। अली बरादरान ने कलम और ज़बान के ज़रिया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। अली बरादरान यानी दोनों भाई ने, मोहम्मद जौहर अली और मोहम्मद शौकत अली ने कलम और ज़बान के ज़रिया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। कलम और ज़बान, कलम समझते हैं आप, यानी लिख कर। उनके अंदर इतनी ताकत थी, इतनी क़ुव्वत थी कि वो लिखते थे और बोलते थे। लिखने और बोलने के ज़रिया उन्होंने क्या है? अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। लिखा कैसे जाता था? पहले क्या अखबार निकलता था, रिसाला निकलता था, उसमें क्या वतन की आज़ादी के लिए, कौम को हिम्मत देने के लिए, हौसला देने के लिए लिखा जाता था। और लिखा क्या है? रिसाले और अखबार में छपता था। तो उसी के ज़रिया क्या है? कलम और ज़बान के ज़रिया क्या है? उन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है। 5 है, अंग्रेज़ हुकूमत ने इन्हें स्टेशन पर रोक दिया। अली बिरादरान को रोक दिया जब वो अपनी अम्मा से मिलने आ रहे थे। हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को वो अपनी आँखों से देख लें। ये कौन चाहती थी? बी अम्मा चाहती थी। बी अम्मा की ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान की आज़ादी, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को वो अपनी आँखों से देख लें। ठीक है, दार लगाकर 5 अल्फाज लिखिए। ये दार लगाकर आपको 5 अल्फाज लिखना है। आपने लाहिक़ा और साबका पढ़ा होगा। जब किसी अल्फाज के पहले कोई लफ्ज़ लिखा जाता है तो इसे लाहिक़ा कहते हैं और बाद में जो लिखा जाता है उसे साबका कहते हैं। ठीक है, तो जैसे दार लगाकर लिखना, तो किराएदार, रिश्तेदार, ज़मींदार, मोहब्बतदार, हक़दार। अच्छा, ये वार और वार हो गया। यहाँ दार और दार, हमें क्या है? दार लगा कर लिखना है। किराएदार, रिश्तेदार, ज़मींदार, मोहब्बतदार और हक़दार, ये क्या है? ये दार लगाकर हुआ। अगर आपको वार लगाकर बोला जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, उम्मीदवार, सिलसिलेवार। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो सबक हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर 7 है और सबक का नाम है बहार। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।